ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਕਹਾ ਮਨ ਭਿਖਿਆ ਸਿਉ ਲਪਟਾਹੀ, या जग मह को रहन ना पावै। एक आवह एक जाहि, कहा मन भिखिया स्यों लपटाही, या जग मह को रहन न पावै। एक आवह एक जाहि रहाओ, काको तन धन संपत काकी, कास्यो नेहो लगाही। जो दिसै सो सगल विनाशै, ज्यों बादर की छाही। तज अभिमान शरण संतन गहो, मुक्त हो है छिन माही। जन नानक भगवंत भजन बिन, सुख सुपनै भी नाहि। तज अभिमान शरण संतन गहो, मुक्त हो है छिन माही। जन नानक भगवंत भजन बिन, सुख सुपनै भी नाहि। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब जी दे आगमन गुरपुरब नूं समर्पित इन्हां विशेष गुरमत दीवाना दी आप जी हाजरी पर रहे हो। कल कथा तो आरंभ विच ही मैं बेनती कर दिती सी, आपां सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज उन्हां दे 59 शब्दां दी लड़ीवार विचार कर रहे हां। अज सारंग राग का दूसरा शब्द है। इस दा पाठ आप जी ने सरवण किया है। आओ इस अमृत बचन दे अखरी अर्थ समय अनुसार व्याख्या और भाव अर्थ आप संगत नाल सांझे कर सकां। आप जितने सतगुरु दी चरण शरण विच शोभाएमान हो, सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी दे चरनां दा ध्यान टिकाइए और अरदास करिए सच्चे पातशाह तुसी किरपा करके साडे अंदर नूं टिका बख्शो। उंज वैसे मैं ऐतवार जरूर अर्ज करांगा। जामे 10 ने
ਤੇ ਜੋਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਸਥਾਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਸਗੰਜ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਸੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਥੜਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਥੜੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਇੰਨੇ ਕੱਟੜ ਤੇ ਸੰਕੀਰਨ ਨਾ ਹੋਇਓ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਭਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਸਨ ਸਾਧ ਜਨ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਈਏ, ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ ਸਾਰੰਗ, ਮਹੱਲਾ 9ਵਾਂ। ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਹੈ ਤੇ ਮਹੱਲਾ 9ਵਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 9ਵਾਂ ਸ਼ਰੀਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਵਸ਼ਕ ਹੈ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਲੈ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ, ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ 9ਵਾਂ। ਹੁਣ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਰਥ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ, ਜੇ ਲੈ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 5ਵਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ 9ਵਾਂ। ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ 9ਵਾਂ। ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਹੈ ਤੇ 9ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਾ ਮਨ। ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਰਥ ਬੜੇ ਸਰਲ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਨਾਸਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਾ ਮਨ, ਮੈਂ ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਉਂ। ਕਹਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਕਹਾ ਮਨ, ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਮਨ। ਅੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਖਿਆ ਸਿਉ ਲਪਟਾਹੀ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਬਿਖ, ਬਿਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਹਿਰ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਿਖ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਇਆ, ਵਾਵੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਬੱਬੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਵਿਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਣਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਿਖ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ, ਤੇ ਬਿਖ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਵਿਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਹਿਰ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਮਾਇਆ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਹਾ ਮਨ, ਵਿਖਿਆ ਸਿਉ, ਸਿਉ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾਲ, ਲਪਟਾਹੀ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ
कदी भी खाहे नूं लगी कोई बिहारी नूं ईड़ी बिहारी च नहीं बदलना। ये थोड़ा जिहा भुलेखा जिवें लपटाई नहीं, इत्थे हजूर कह रहे ने कहा मन विख्या स्यों लपटाही। अर्थ हो गए कि लपटाही दा अर्थ चंबड़िया होया, जुड़िया होया। ये अर्थ हो गए कि हे मन तू आ माया दी जहर विच क्यों लिपटिया होया है, क्यों इनू चंबड़िया होया, क्यों नहीं खेड़ा छड़दा। अगला बचन या इस बेनती नूं फिर मैं कोई ये नहीं कि मैं बहुत कोई जानना, डर लगता रहिंदा है। ये गल करदे हां क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब अगाध बोध ने, इनू यैया ही बोलना है, या इनू जा नहीं बोलना। मैं एक दिन इत्थे कथा करदियां क्या सी कि ये भी बाणी च बड़ियां रमजान ऐसियां। मैं कित्थे बेनती की सी पूरे गुरु ग्रंथ साहिब च ना जी, जिथे भी इस नाल नहीं वैसे जुड़दा पर अखर की पहचान कैसी, जिथे पूरे गुरु ग्रंथ साहिब च जज्जे नाल लफ्ज जार आएगा, जज्जा कन्ना रारा जार आएगा, तो मैं अर्ज की सी ओदे अख मीट के अर्थ करियो भी विचारी, इखलाक तो हीना चरित्रहीन। जिथे भी जज्जे नूं कन्ना ला के रारा जार आएगा। जिवें असीं पाठ करने मैं उदन कहा सी चोरां जारां रंडियां कुटनियां दीवान, उत्थे जज्जे नाल जार आया है। इसे तरह पाठ करदियां आउंदा है महाराज चोर जार जुआर ते बुरा, उत्थे भी जज्जे नाल आया जी। ते बाणी च भी आउंदा है सुन यार हमारे सज्जन, वो यईए नाल आया है। यार वे हिक डू हिक चाड़े, जिथे गुरु ग्रंथ साहिब च यईए नूं कन्ना ते रारा यार होवे, ओदे अर्थ परमात्मा मिलणगे जां गुरु मिलेगा, जां ओदे अर्थ बंदगी करन वाला गुरमुख होवेगा। वो नैगेटिव अर्थ नहीं ओदे होणगे। पर जिथे जज्जे नूं कन्ना ला के रारा जार आएगा, ओदे लफ्जी अर्थ सिद्धे ने भी चरित्रहीन। इत्थे हुण मेरी बेनती आ शब्द जिहड़ा है कि कहा मन विख्या स्यों लपटाही या जग, इत्थे याद अर्थ इस करांगे, जग दा अर्थ संसार दुनिया, या जग में को रहन ना पावे। इस जग विच इस संसार विच किसे ने नहीं रहना, किसे ने टिके नहीं रहना। ते नाल महाराज कहंदे ने एक आवहें एक जाही। तुसीं उत्ते पाठ देख रहे हो, इत्थे ईड़ी नूं सिहारी ते कक्के नूं सिहारी लगी है। एक बोल रहा ना मैं, ते गुरु ग्रंथ साहिब विच ईड़ी नूं सिहारी ते कक्के नूं औंकड़ भी आउंदी। हुण जिहड़ा लफ्ज़ इत्थे आया एक, ये असल च ईड़ी नूं सिहारी कक्के नूं लगी हुई औंकड़ दा बहुवचन है। इनू फिर बेनती नूं सुनियो। एक दा अर्थ इत्थे एक वचन नहीं, एक नहीं, इत्थे एक दा लफ्जी अर्थ है कई। हुण पढ़न विच एक है, आम बंदा कहेगा एक दा अर्थ हो गया एक, नहीं नहीं, इत्थे एक दा अर्थ एक। आप कदी दूसरी पौड़ी पढ़ियो, हुक्मी खोवन आकार हुक्म न कहा जाई, हुक्मी खोवन जी हुक्म मिलै वडियाई, हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइया, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पाइयो। उत्थे ईड़ी नूं सिहारी कक्के नूं सिहारी लगी, बहुवचन। इत्थे कई करांगे अर्थ, इत्थे एक दा अर्थ हो गया कई। महाराज कहते हैं एक आवह हाए नूं सिहारी लगी बोलनी है, वावे उत्ते ला बना के नहीं पाठ करना। एक आवह इहदा अर्थ हो गया कई आउंदे ने, ते भाव अर्थ इहदा हो गया कई जमदे पे ने रोज। ते महाराज कहते ने एक जाही, इत्थे फिर हो गया एक दा अर्थ हो गया कई, कई रोज जमदे पे ने, कई रोज मरदे पे ने। ओ मेरिया मना, जे उन्हां वल झाती मार के देख जिहड़े जन्म मरण विच पए होए ने, ते तैनूं समझ आ जानी चाहिदी है तेरे तो पहला भी वासना विच प्रवृत्त रहे, वो दुनिया तो कूच कर गए, एक दिन कूच तू भी कर जाना है। इहदा मतलब सीधे अखरी अर्थ ये ने। मैं फिर बेनती करांगा, कहा मन विख्या सो लपटाही, ते आपां एक एक तुक दे अर्थ भाव अर्थ ते मेरी सच्ची इच्छा है तां स्क्रीन ते शब्द नाल हुण चलवा लेना।
कि घट्टो घट संगत की सेवा भावना सहित कर सकां ते जेड़े गुरु ग्रंथ साहिब दे पाठ अर्थ और व्याख्या नूं मुहब्बत कर देखूं। हुण सीधे दो तुकां दे अर्थ हो गए। मना क्यों तू वासना दी जहर विच लिपटिया है, आ जग वल झाती मार संसार च, इत्थे रोज़ कई जमदे पे ने, कई मरदे पे ने, एक दिन वारी तेरी भी आउण वाली है, क्यों चंबड़िया होया है। हुण इत्थे शब्द है कहा मन, क्यों मन में कीता। कई बारी आप नाल सांझ पाई है कि सब तो ज़्यादा शब्द गुरु जी ने जो अंदर नूं सोधन लई वरत लिया वो मन वरतिया है। उंज वैसे सतगुरु ने यह भी शब्द वरतिया, तिथ है घड़ीए सुरत मत मन बुद्ध, चारां दा जिक्र भी किया है। असल च गुरु ग्रंथ साहिब जिहड़ा मन है ये नैगेटिव पक्ष विच भी आ जाता है तो ये पॉजिटिव विच भी आउंदा है। इहनूं सीधी बेनती करां, एक मन का वो रूप है जिन्हों मलीनता कहा जाता है, तो एक मन का वो पासा जिहड़ा अत दा निर्मल है। क्योंकि असी सिर्फ दो तुकां ते मन निर्मल भी है तो मन मैला भी है मन। थोड़ा जिहा इस बेनती नूं फिर सुनियो। जिवें जिस बंदे दा अंदर वासना दे विच लिबड़िया होया है, वो मन मलीन हो गया है, तो मैला मन कभी भी टिकदा नहीं हुंदा। ये गल पक्की है कि भावें असी मन अपना भटकदा गुस्सा दूजे ते कड्डी जाने आ, नहीं जी, सच ये वे कि जे सोने दी डली विच मैल होवेगी उन्हों सुनार वीर कुठाली च पाएगा, उस सोने ने उस कुठाली च भांडे च नहीं टिकना, सेक लगेगा तो वह कुठाली विच भटकेगा। गुरमुखो सच ये वे जिहदे मन विच मैल होवेगी, जदों बाणी दा सेक लगेगा पहला वह भी बड़ा भटकेगा, क्योंकि मैला मन कदी टिकदा नहीं हुंदा। ये हर बंदे नूं पता होना चाहिए। जे नहीं टिक रहा तो उन्होंने 24 घंटे पिछा जा 48 घंटे पिछा नज़रशानी जरूर कर लेनी चाहिए। मैं की फुरने बनाए, किनू मिलिया, की खादा, ते किन्ना दी संगत कीती, की अखां नाल देखिया, की मैं पढ़िया, पता नहीं किहड़ी चीज़ जिहड़ी एक मैल दा किणका बन के मन दा किंडा बना देगी। फिर अर्ज है, एक है मैला पक्ष, दूसरा है निर्मल। गुरु साहब जी ने उंज मन नूं प्यार भी बड़ा कीता। सच ये वे, ये बुरे कर्मां विच भी ना रहिंदा है ते चंगियां विच भी ना रहिंदा। इसे करके गुरु ग्रंथ साहिब विच भगत कबीर साहिब जी का बचन है कि मम्मा मन स्यों काज है। मन तो बिना तो बुराई नहीं हो सकती जी, मन तो बिना तो सच्ची है पाप भी नहीं हो सकता, तो मन तो बिना बंदगी भी नहीं हो सकती। चंगियाई विच भी मन ने साथ देना है तो बुराई विच भी मन ने साथ देना है। सतगुरु कहते मम्मा मन स्यो काज कह, मन साथ दे सिद्ध होए, मन ही मन स्यो कह कबीरा, मन सा मिलिया ना कोई, इस मन वर्गा कोई भी नहीं। फिर बेनती सुनियो, अगे महाराज फिर एक होर कहंदे आ, ए मन शक्ति, ए मन सीओ, ए मन पंच तत्त को जियो, ए मन ले जो उन्मन रहे तो 3 लोक की बातें कहे। हुण सतगुरु शब्द की वरत रहे, फिर इसनूं मैं अर्थ कर देना। ए मन शक्ति, शक्ति दा अर्थ है माया बई, ये वासना विच प्रवृत्त हुंदा है ते ये मन शक्ति है, ये माया बई है, ये मलीन है। ते सीओ दा लफ्जी अर्थ है शिव, ते शिव दा अर्थ इत्थे देवता शिव नहीं, इत्थे शिव दा अर्थ है पार ब्रह्म परमेश्वर। जिवें सतगुरु बाणी च कहंदे शिव शक्त आप उपायक है, एक वो भी पक्ष है, पर इत्थे सीओ दा अर्थ है शिव परमात्मा कल्याण रूप। कहंदे यही मन जदों माया वाले पासे झुकदा है ते शक्ति दा रूप बन जाता है, माया भी हो जाता है, ते जदों माया तो निर्लेप हो के परमात्मा वाले पासे तुरदा है ते सच ये वे मन प्रभु दा रूप हो जाता है। 2 पक्ष हो गए ना, ए मन शक्ति, ए मन सीओ, ए मन पंच तत्त को जियो। जदों ये अपनी कार्रवाई करता है ना चंगे बंदे दी, इनू 5 तत्तां दा चोला मिलना जरूर है। इसनूं फिर बेनती नूं सुनियो, जे मन नूं आ चीज़ नहीं मिलेगी, बॉडी नहीं मिलेगी, मन किवें काम करेगा। मन नूं अखां मिलणगियां ते पराए रूप दा रस लएगा, मन नूं कंन किते मिलणगे जानकारी देण वास्ते ते तां निंदिया चुगली सुनेगा। जे मन नूं जीव मिलेगी ते झूठ बोलेगा, जे मन नूं इंद्रियां मिलणगियां ते विषय भोगेगा,
ਤੇ ਜੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਅਗਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਮਨ ਸੀਓ, ਇਹ ਮਨ ਪੰਚ ਤਤ ਕੋ ਜੀਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਵੇ, ਇਹ ਮਨ ਲੈ ਜੋ ਉਨਮਨ ਰਹੇ ਤੋ ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸਰੀਰ ਉਹੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਉਕਤਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ, ਮਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਥਾਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਿਆਲ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਤਨ ਕਹੀ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਗੁਰ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹਿ ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹਿ ਕਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਨ ਆਗਿਆ ਸਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦਾ। ਤਨ ਨੇ ਆਗਿਆ ਸਹਿ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਤਨ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਜੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦਮੰਦ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨ ਚ ਸਹਿ, ਗੁਰ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹੇ ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹਿ। ਆਪਸ ਕੋ ਕਰ ਕਛ ਨਾ ਜਨਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਤ ਗਾਵੈ। ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ। ਹੁਣ ਮਨ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨ ਉਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਹ ਹੀ ਮਨ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੇ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮਨਵਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਉਹ ਚੇਤੇ ਕਦੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਿਆਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਨੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ ਉਕਤਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਡਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਈ ਬੈਠਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੇਕ ਕੇ ਸੁਣਿਓ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਕਾਬੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੁਪਤ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਜੇ ਮਨ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀਰਤਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸੱਚੀ ਜੇ ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਨੇਮ ਛੱਡ ਦੀ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਖੱਟੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ, ਤੀਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ, ਚੌਥਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਿਆ, ਸੱਚ ਜੱਸੀ ਤੇਰਾ ਰੋਜ਼ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਹੈ 2 ਗਜ, ਜਿਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਬਹਿਣਾ, ਕਿਰਸਾਨ ਤੇਰਾ ਰੋਜ਼ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਖੇਤਾਂ ਜਾਏ, ਮੀਂਹ ਪਵੇ, ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ, ਠੰਡ ਪੈ, ਤੂੰ ਖੇਤਾਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ? ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋ ਰਵਾਂ, ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਵਪਾਰ ਕਰਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੱਚੀ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਖੱਟੀ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
नौकरी ते जान नूं चित नहीं करता। फिर हजूर कहने क्यों जाते हो, छड्ड दिओ। कहन लगे महाराज जे नहीं जावांगे तो साडे ढिड दी लोड़ है रोटी, रोटी नहीं मिलेगी तो किवें काम चलेगा। महाराज कहने चेते रखियो जेड़ी चीज़ दी लोड़ महसूस होवे चित ना भी लगे तो छड्डी दा नहीं हुंदा। जिदन रब दी लोड़ महसूस होगी ना, बाणी दी लोड़ महसूस होगी, मनवा ना भी लगे, सिख कदी अपनी जिंदगी च नेम नहीं छड्डेगा। फिर बेनती कि आप बाकी सारा छड्ड देने काम, हर थां ते चित थोड़ा लगदा। उन्हां फिर अगे बेनती की महाराज टिके किवें। धन गुरु रामदास बचन करते हैं, कहन लगे जिम निस दिन कर काज सुधारे। जिमें तुसी सारे लोग अपने काम दिन रात कर देखो, त्यागै कबू ना लागै प्यारे। तुहानू काम रोज चंगा लगदा, कदी छड्डदे नहीं। तथा प्यार धरो गुरबानी। जिस तरह अपनी नौकरी नू, व्यापार नू, खट्टी नू, दिहाड़ी नू, गड्डी नू, जो आप कर रहे हैं, जिन्ना तू अपनी जॉब नू प्यार कर रहे ना, इस तरह प्यार कदे गुरु की बाणी नू भी कर, नागा ना पा। फिर मेरी बेनती जे मैं एक बार कहा सी कि जिंदगी च एको अरदास करियो, मन टिके ना टिके, मेरा भावें तुसी कह दो ये अंधविश्वास है, टिके ना टिके, पर कदी अपने गुरु दे दत्ते नेम नू नहीं छड्डना। वो मैं एक बार उदाहरण दिती सी, मैं रिपीट कर देना। चलो इत्थे तां बिजली रहिंदी आ 24 घंटे 8 पैर, अपनी जी उत्थे बिजली कई कई दिन भी नहीं सी आउंदी हुंदी। श्रीमान भाई वीर सिंह जी नूं किसे पुछया सी जी जे चेतना लगे तो नेम छड्ड दईए। भाई साहब ने कहा सरदार साहब तुहाडी बिजली लगी है, कनैक्शन है? कहंदा जी है। कहंदे रोज़ बिजली आउंदी है? कहंदे रोज़ तो नहीं आउंदी। फिर कहंदे जे नहीं आउंदी तो उहदा खंबे तो कनैक्शन कट दिओ। कहन लगा ये कोई दलील है? जे कनैक्शन कट दिता, कदी भी बिजली आ गई तो कट्टे हुए कनैक्शन नाल कदी लाइट नहीं जगनी। भाई साहब हस के कहंदे सरदार जी कदी नेम दा कनैक्शन नहीं कट्टी दा हुंदा गुरु नालों। जे कनैक्शन ही टुट गया तो बत्ती किदन बलनी है। मैं आपनू फिर बेनती करांगा कि जिम निस दिन कर काज तुहारे, त्यागै कबू न लागै प्यारे। तथा प्यार धरो गुरबानी, पढ़न सुन की रुच मन ठानी। अगे जो कथा होवे फिर की करिए। उंज जरूरी है भी असी जिवें हुण बैठे हाँ ये कथा करने, आप संगत सुनते हो, पर उंज मैं बेनती करा जे 2 सिख भी इकट्ठे हो गए हो ना, कथा उत्थे भी हो सकती है। एक शब्द ले लो, उस शब्द नूं आप दोनों विचारीए तो मन टिकन लग पेगा। कहन लगे तथा प्यार धरो गुरबानी। धरियो अर्थ जो शब्द मझारा, बार बार उर करो विचारा। जो शब्द विच अर्थ रखे है उन्होंने वार वार अपने मन च सोचो। की सोचो? गुर क्या कहे, क्या गुर कहे करे हम कहाँ। सिर्फ अपने मन नूं पुछना, ओ मना जेड़ा अज तू शब्द की कथा करके तेरे गुरु ने की कीता ते तू करतूतां की पिया करना है। फुरनियां नाल मन टिकन लग पैंदा। मेरी फिर बेनती, आप मैं कल्ले ये इतिहास तो नहीं कह रहा, तुसी गुरु ग्रंथ साहिब च पढ़ो। रे मन रूड़े रंगले तू सच्चा रंग चढ़ाए, रूड़ी बाणी जे रपै ना वो रंग लहे ना जाए। महाराज ने मन नूं किन्ना संबोध, कल भी असीं पढ़िया, ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले। ए मन चंचला चतुराई किना न पाया, मन खुटर तेरा नहीं विसास, तू महा उदमादा। मैं फिर बेनती करा कि जो ऐसता ऐसता मन इको दम नहीं, हाँ गुर प्रसाद वरत जावे ते अख झमकन तो पहला टिक जाएगा। अर्थ सुने वे सुनो, महाराज कहते ने धरियो अर्थ जो शब्द मझारा, बार बार उर करो विचारा। क्या गुर कह करा हम कहाँ, सन सरा मन मोरो महा। ये मन टिक जाएगा। थोड़ियां जियां मेरिया एक होर बेनती है, एक ये टिकना कित्थे वे, जिहदी यारी गंदियां फुरनियां दे नाल है। उस दिन शब्द आया जी उत्थे रिवर साइड, पापी ही है मैं काम बसाए सिंह कई। तकरीबन रोज हारजी दी भरदे रहे कथा च। मन चंचल जाते गहो न जाए। ये गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे ने बलीन हिरदे दे विच काम दे फुरने ने, ये मन इन्ना गंदा टिकदा ही नहीं। ते एक महाराज ने कहा साधो ए मन गहो न जाई, चंचल तृष्णा संग बसता है जाते थिर ना रखाई। तृष्णा करके ते काम करके। ते उत्थे मैं एक बेनती की सी, एक विचारमाला विधान का ग्रंथ है, मैं रिपीट कर लगा। काम केवल स्पर्शता नहीं,
ਸਪਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਰਮਣਾ ਅਖੀਰਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਫੁਰਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਾਮ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। 8 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਮ ਵਾਪਰਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਨੱਕ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨਾਲ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਬੋਲੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਪਟਿਆ ਪਿਆ। ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੋਵਾ ਸਿਕਦਾਰ, ਕਾਮ ਨੇਬ ਸਦ ਪੁੱਛੀਐ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ, ਅੰਧੀ ਰਹੀਤ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਭਾਏ ਭਰੈ ਮੁਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇਹਦੀ ਯਾਰੀ ਤਾਂ ਕਾਮ ਨੇਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ। ਮੈਂ ਅਰਥ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਾਚਨਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਭੋਗ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ। ਲੱਭ, ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਲੋਭ, ਇੱਕ ਲੱਭ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੱਭ ਤੇ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੱਭ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀਵ ਦੇ ਚਸਕੇ, ਤੇ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲੱਭ ਕੁੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲ, ਖੱਡੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਹ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ। ਲਾਲਚ ਤੇ ਪਾਪ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮਹਿਤਾ, ਸਭ ਜੋ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿ ਲੋ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਭ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਲਚ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਾਪ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੋਵਾ ਸਿਕਦਾਰ। ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲਚ, ਪਾਪ ਤੇ ਝੂਠ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜੀ? ਕਾਮ ਨੇਬ ਸਦ ਪੁੱਛੀਐ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਹੈ, ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ, ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰਾਂ ਵਿਚਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕੇ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਂਝ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬੜੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਂਝ ਜੇ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਟਿਕ ਕੇ, ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੇ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਵੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਲੀਜੈ ਗੜਬੰਕਾ ਭਾਈ, ਦੋਵਰ ਕੋਟ ਅਰ ਤੇਵਰ ਖਾਈ, 5-25 महामद मदसर आदि परबल माया, जन गरीब को जोर न पहुँचे कहाँ करूँ रगराया। काम किवारी दुख सुख दरवानी, पाप पुन दरवाजा, क्रोध प्रधान महाबड़ दुंदर, तै मन मावासी राजा। देखो महाराज कहते स्वाद सना टोप ममता को बुद्ध कमान चढ़ाई, तृष्णा तीर रहे घट भीतर, यूं गढ़ लियो ना जाई। मैं अद्धा हिस्सा शब्द का पढ़िया जी, ते इस तो अग्गा अद्धा जिहड़ा हिस्सा अगला वो काबू कर ली। थोड़े ਜਿਹੇ अर्थ बेनती सुनियो। क्यों लीजै गढ़ बंका भाई। बंका का लफ्जी अर्थ है पक्का, कठोर, पक्का, ते गढ़ का अर्थ है किला। आ शरीर जिन्ने असीं बैठे हैं किला है। मैं कई बारी बेनती करना, कुछ ग्रंथ ऐसे ने ਜਿਹੜੇ पुरातन, जिवें प्रभो चंद्र नाटक ग्रंथ सी पुराना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਕਿਲਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਲੁਪਤੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿਉਂ ਲੀਜੈ ਗੜ ਬੰਕਾ ਭਾਈ, ਦੋਵਰ ਕੋਟ, ਦੋਵਰ ਦਾ ਅਰਥ ਦੋ, ਦਵੈਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, याद रखियो ਇਹਦੀ ਫਸੀਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਵੈਸ਼ ਦੀ ਹੈ, ਦੁਬਦਾ ਦੀ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਰ ਕੋਟ ਅਰ ਤੇਵਰ ਖਾਈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਲਾ ਜਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਖਾਈ ਪੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 3 ਗੁਣ, ਰਜ ਗੁਣ, ਤਮ ਗੁਣ ਤੇ 7 ਗੁਣ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਖਾਈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, अर्थ हो जाएंगे, जिन्नी को समझ पै जाए समझो नहीं खटिया। क्यों लीजै गढ़ बंका भाई, दोवर कोटर तेवर खाई। अगे जी 5-25 मोह मद मत्सर। 5 का अर्थ हो गया 5 विकार, 5 तत्व भी ने।
ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ सांख शास्त्र ਜਿਹੜੇ 6 शास्त्र ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ सांख ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ 5 ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿੱਝ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵੀਰਜ ਬਣਦਾ, ਥੁੱਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਈਰਖਾ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ। 5 ਤੱਤ ਨੇ, 25 ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ, 5 25 मोह भी अंदर है। मत सर दर थे ईरखा, मद दर थे हंकार। इस मन नू काबू कित्थे करना प्यारिओ? एक तां द्वैश दा मारिया पिया, तीजा रजगुण, तम गुण, सतगुण दी खाई है 4 चफेरे। अगली गल 5 विकार दे अंदर 5 तत्तां दा बनिया। अगे 25 प्रकृतियां ने, हंकार दा नशे दे कोल, ईरखा दे कोल, मोह ਇਹਦੇ ਕੋਲ, 5 25 मोह, मद मत सर आडी। आडी ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ। ਆਡੀ ਪ੍ਰਬਲ ਮਾਇਆ। ਵੈਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਕਾਬੂ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਮਨ ਨੇ ਇੰਨਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਜਿੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਆਡੀ ਪ੍ਰਬਲ ਮਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਜਨ ਗਰੀਬ ਕੋ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਗਹਿਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। पर मेरी गल का गुस्सा ना करियो। जदों सरोते की सुरत गवाच जाएगी, उदों स्टेज के अर्थां का अंत हो जाएगा। ये सच है ना जी। जे समझ वाला नहीं समझेगा, समझ नहीं होगी। हुण मैं कोई शब्द दूजे ग्रंथ चो लै रहा, सिर्फ उस चो लै रहा जिन्हों तुसी मैं गुरु ग्रंथ साहब अपना इष्ट कहने। कबीर साहब कहते मेरे हाथ खड़े हो गए, मैं नहीं जित सकता। जन गरीब को जोर न पहुंचे, कहाँ करूं रगराया। हे प्रभु मैं की करा। अगली कल काम किवारी। ये जिस किले च मन बैठा हंकारी होके, इस किले दे जिन्ने भी दरवाजे उत्ते जिन्हां दे इशारे नाल दरवाजा खुलदा काम है। मैं आपनू बेनती की सच्ची जे, सब तो ज्यादा परबल ये बूहे खिलांदा है। काम दा फुरना आउंदा है ते गीत सुनने शुरू कर दिंदा है। मैं उदन क्या कही जाता है, ये सभ्याचार है साडा। ते चेते रखियो, सभ्याचार दे विच 99% सिर्फ एक औरत दे अंगां दा ही जिक्र किया जा रहा है। ये सभ्याचार नहीं, असल च कन्ना रही वासना की पूर्ति की जा रही है। सच तो यह है ना जी, जिन्हों आप कह रहे हैं, क्योंकि बरीकी नाल जे देखी, ये जिन्ने दरवाजे ने ये खुलते काम करके, अखां काम करके। काम किवारी, किवारी का लफ्जी अर्थ है जिन्हें इशारे नाल बूहे खुलने ने, खुलने नहीं, इन्हें इशारा करना। काम किवारी, दुख सुख दरवानी। दरवानी का अर्थ है वह जिहड़ा बूहा खोलते ने, दरवाजे ते बैठे गेट कीपर। कहते ने ये विचों 2 ही चीज़ां मिलनियां ने। जदों अग भटकदी है, थोड़े चिर दा सुख मिलता है, उदों बाद फिर याद रखो कई सालां दा दुख पल्ले पा जांदा है। काम किवारी, दुख सुख दरवानी, ते इहदा फल की मिलना? पाप पुन दरवाजा। पाप ते पुन है, पाप पुन दरवाजा। क्रोध प्रधान, कला इकाम हुंदा, कला लालच हुंदा, बच जांदे। कहन लगे यारी तां पाई बैठा मन क्रोध नाल, गुस्से नाल। महाराज कहने क्रोध प्रधान, महाबड़ दुंदर तह मन मावासी राजा। आकी होके बह गया, किवें फड़ा। मैं देखो एक कथा कर रहा वां, कहाँ मन बिख्या सो लपटाही। आप विषय तो दूर नहीं गए, कित्थे लुपट है मन मावासी राजा। फिर अगे जी कहन लगे जिवें फौजी नहीं जाते होंगे, एक संजोग पाया हुंदा है, लोहे की वर्दी, सिर दे उत्ते टोपी बन्नी है, किते गोली ना वज जाए। पुराने समय भत्थे च तीर हुंदे सन, कमान हुंदी सी। कहन लगे स्वाद सनाह, ये मन जिहड़ा चस्के लैंदा ना, स्वाद मानदा वासनावां दे, ये संजोग पिया है। जिवें तन दे उत्ते संजोग होवे, तीर ते गोली नहीं मार करदे, जिहदे उत्ते प्यारिओ वासना ते सजमादां दा संजोग है, उहदे उत्ते छेती बाणी नहीं वार करदी, क्योंकि वह सारा ढकिया होया। स्वाद सना टोप ममता को, इस मन ने अपने उत्ते जी टोपी लई, वो ममता दी, मैं मेरी दी है। स्वाद सना टोप ममता को, कुबुद्ध कमान चढ़ाई, भैड़ी बुद्धि दी कमान मोढे ते लाई बैठा। तृष्णा तीर रहे घट भीतर, भत्था तृष्णा दे तीरां नाल भरिया है। महाराज कहते ने सच एवे यूं गढ़ लियो ना जाई, ये काबू नहीं आ सकता। हुण मेरी बेनती सुनियो ध्यान नाल, लगे
मैं आपनों कहा सी भी अर्थ महंगे ने। साखी कहानी एक खिन विच आपां सुनने हाँ, चंगी गल है, पर गुरु ग्रंथ साहिब के शब्दों के अर्थों में हुण इत्थों तक मन की दुर्दशा दसी। गुरमुखो ये काबू किवें आए? इहदा मतलब हाथ खड़े हो गए, परमार्थ विच काबू नहीं आउणा। अगे कबीर साहिब कहंदे ने नहीं, प्रेम पलीता सुरत हवाई गोला ज्ञान चलाया। इसनूं सुनियो ध्यान नाल। मन बैठा इस किले दे विच ते भगत साहिब कह रहे ने, कहन लगे प्यारिओ, पुराने समय जदों तोप चलाते सन ते अग बाल के पलीता नाल दागिया जांदा सी गोला। जदी अग लाते सन पलीते न लगदी, प्रेम पलीता। कहन लगे जे इनू काबू करना ही ना, वासना की थां ते शुद्ध प्यार तेरा रब नाल हो जाए। ये अग इहो जिहा पलीते का काम करेगी। सुरत हवाई, सुरत हवाई का लफ्जी अर्थ मज़ैल कर लो जी। अजकल तोप जिन्हों कहने, कहन लगे तेरी सुरत बड़े कमाल दी है, पर दुख इस चीज़ का है, इस सुरत दे विच सारे का सारा बरूद वासना का भरिया पिया है। इस सुरत दे विच तू गुरु दे शब्द का बरूद पा दे, प्रेम दे नाल पलीता ला दे, ते याद रखिए दे विच जिहड़ा गोला निकलना है वह ब्रह्म ज्ञान का निकलेगा। प्रेम पलीता सुरत हवाई गोला ज्ञान चलाया, ब्रह्म अगन सहजे परजाली। एक हुंदी है जठरागन, ब्रह्म अगन भी बंदगी नाल पैदा हुंदी। कहन लगे प्यारिओ, आ सहज अवस्था भी जिहड़ी ब्रह्म ज्ञान चंगा कीता तुसीं लाता। संगत ये सुन लेगी, प्रेम पलीता सुरत हवाई गोला ज्ञान चलाया, शब्द का गोला चलाया। ते महाराज कहंदे ने इहदे नाल होया कि ब्रह्म अगन सहजे परजाली, एक चोट सजाया वाहिगुरू। प्रेम पलीता सुरत हवाई गोला ज्ञान चलाया, ब्रह्म अगन सहजे परजाली। जिहड़ा मन कहंदा सी मैं नहीं काबू होना, एक चोट सजाया, इक्को चोट पई टिकाने दे उत्ते किले दी दीवार तोड़ के रख दित्ती। किहड़ी दवैश टुट गई। अगे फिर महाराज कहंदे ने, सत संतोख लै लरने लागा। हुण मेरी बेनती ध्यान नाल सुनियो। पहला इहदे कोल लालच सी, काम सी, क्रोध सी, ममता सी। हुण सब कुछ बदल गया, क्योंकि जिहड़ी एनर्जी लालच सी वो संतोख का रूप धारण कर गई। जिहड़ा अगे झूठ सी गुरमुखो सत का रूप धारण कर गया। मन वही है, दुश्मना वाली बिरती गुरु दे शब्द ने चेंज कर दी। मित्र आ गए जिन्हों आप कहते हो, नस वंजो किल विखो करता कर आया, दूता दहन पया गोबिंद प्रगटाया। सत संतोख ले लरने लागा। अगे की कीता जी, तोरे दोए दरवाजा। आ जेडे दरवाजे पाप ते पुण्य दे सन, ये तोड़े। साध संगत अर गुर की कृपा ते पकड़ियो गढ़ को राजा। जेड़ा मन वासना विच लुप्त है, साध संगत की कृपा नाल, गुरु की मेहर नाल, साध संगत अर्ध अर्थ इत्थे अते है। साध संगत अर गुर की कृपा ते पकड़ियो गढ़ को राजा। भगवत पीर शक्त सिमरन की, भगवत परमात्मा वाहिगुरू ओदी बंदगी करने वालियां दी गुरमुखां दी भीड़, संगत जिन्हों कहने आ, सिमरन की ताकत नाल कटी काल पे फांसी। दास कमीर चढ़ियो गढ़ ऊपर राज लियो अबनाशी। कहन लगे जेड़ा किला काबू नहीं सी आउंदा, दास कमीर लफ्जी अर्थ दे कबीर ही करांगे। कहन लगे इस गढ़ नूं जित गया है। मैं आप नूं बेनती करा, विषय विच प्रवृत्त है, इनू केवल गुरु का शब्द ते संगत ही मोड़ सकती है। परमात्मा दे सिमरन नाल काबू आ सकेगा, संगत कृपा करे तो आ सकता है। हुण अगली गल, ये जदों खांदा पिया ना, एक होर मैं एक शब्द है गुरु ग्रंथ साहिब वो ना लाओ, ये फरीदा ये विश गंदलां धरियां खंड लिवाड़, एक राहे दे रह गए एक राधी गए उजाड़। फरीद साहब का श्लोक है। प्रोफैसर साहब सिंह उन्होंने ये अर्थ यही किए, दो तीन विद्वानों ने सिर्फ अर्थ ये किए आ। ये विश गंदलां, आपनों पता होना गंदल किनू कहते हैं। आप जो साग तोड़ते सा ना जी, इं कह लो भी जेड़ा साग है उसकी डंडी जी तोड़ने उन्होंने गंदल कहने हैं। उन्होंने ये अर्थ किए ने, गंदल का अर्थ किया पदार्थ। उंज ज्यादातर विद्वानों ने विश गंदलों का लफ्जी अर्थ किया
ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਉਥਾਨਕਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਸ਼ਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਹੈ ਗਏ ਬਾਹਨ ਸਕਨ ਘਨ ਛਤਰਪਤੀ ਕੀ ਨਾਰ ਤਾਰ ਤਾਸ ਪਟੰਤਰ ਨਾ ਪੁਜੈ ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਪਨਖਾਰ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸਮਰਾਟ ਦੀ ਵਾਈਫ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਪਨਹਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਸ ਪਟੰਤਰ ਨਾ ਪੁਜਾ ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਪਨਹਾਰ। ਖਰੀ ਜਨ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਆਮ ਔਰਤ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਣੀ? ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਔਰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ? ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਨਿਰਪ ਨਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਿੰਦਿਆ, ਹਰ ਚੇਰੀ ਕਿਉਂ ਮਾਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਿਰਪ ਨਾਰੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ ਗੰਦਲਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਪ ਨਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਿੰਦਿਆ ਹਰ ਚੇਰੀ ਕਿਉਂ ਮਾਨ। ਉਹ ਮਾਂਗ ਸਵਾਰ ਹੈ ਬਿਖਾ ਕੋ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਵਾਸ਼ਨਾ ਭੋਗਣ ਲਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਏ। ਉਹ ਸਿਮਰੈ ਖਰ ਨਾਮ। ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਢੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਪਦਾਰਥ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ ਗੰਦਲਾਂ ਧਰੀਆਂ ਖੰਡ ਲਿਵਾੜ, ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋਏ ਉੱਤੋਂ ਖੰਡ ਦੀ ਚਾਸ ਨਾਲ ਲਵੇੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਖਾਈ ਜਾ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਕੀਏ ਰਸ ਭੋਗ, ਤਾਂ ਤਨ ਉੱਠ ਖਲੋਏ ਰੋਗ। ਤੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਧ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬੱਤ ਪਾਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਂਝ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਿੱਠਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਆਪ ਤਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਬੜੇ એનર્ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਇੰਨੀ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਹੰਕਾਰ ਬੜੀ એનર્ਜੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਲਾਲਚ ਬੜੀ એનર્ਜੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ, ਮੋਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕ੍ਰੋਧ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਫੂਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੇ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿੱਕਾ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲਿਪਟ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝੋਗਾ। ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪੈਣੀ, ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੜ ਨਿਕਲਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਗੁੜ ਕੱਢਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਵੇਖ ਜੇ ਮਿੱਠਾ ਕੱਟਿਆ, ਮਿੱਠਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੰਨਾ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਠਾ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਗੰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੰਨਾ ਪੱਕ ਗਿਆ, ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਕਮਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਨਾ ਕੱਟੋ, ਜੇ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ। ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗ ਹੈ ਨਾ, ਆਗ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਹਰਾ ਪੱਤਾ, ਆਗ ਕੱਟਿਆ। ਇਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਛਿਲਕਾ ਸੀ ਛੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਛੋਈ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਗੱਠਾਂ ਬੰਨ ਲਈਆਂ। ਗੱਠਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਲਣੇ ਦੀਆਂ ਲੱਠਾਂ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁल्हाड़ी ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਹਾਂ ਵੇਲਣਾ ਸ਼ਬਦ, ਵੇਲਣੇ ਦੀਆਂ ਲੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੀੜਿਆ। ਮਿੱਠਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਰੋਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ, ਪੱਛੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੱਛੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਛਿਲਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੜਾਇਆ ਤਪਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅੱਗ ਬਲੀ ਸੀ, ਕੜਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੀਆਂ ਪੱਛੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੇਕ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਿਲਕਾ ਸੀ, ਪੱਛੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਲਦੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਠਾਸ, ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਿੱਠਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ, ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨਿਆ, ਬੰਨ ਕੇ ਪੀੜਿਆ। ਪੀੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਕੜਾਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲਾਈ, ਤੇ ਅੱਗ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਪੱਛੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੜਾਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਪਦੀ ਹੈ ਨਾ ਰੋਹ,
रस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਲਬੁਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਬੁਲਬੁਲੇ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਕੜਾਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਬੁਲਬੁਲੇ ਨਿਕਲੇ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੜਾਹੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਮਿੱਠੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਯਾਰ ਇਸ ਮਿੱਠੇ ਵਿੱਚ ਵਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਵੇਖ ਜੇ ਮਿੱਠਾ ਕੱਟਿਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਾਂ ਮਨ ਵਿਖਿਆ ਸੋ ਲਪਟਾਈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਤੁਕ ਤੇ ਰੁਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਜੇ ਮਿੱਠਾ ਕੱਟਿਆ, ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਬੱਧਾ ਪਾਏ, ਖੁੰਡਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਨ ਸੋ ਮਲ ਸਜਾਏ, ਰਸ ਕਸ ਟੱਟਰ, ਟੱਟਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਨਾ ਕੜਾਇਆ, ਰਸ ਕਸ ਟੱਟਰ ਪਾਈਆ, ਤਪੈ ਤੈ ਬਿਲਲਾਏ, ਪੀਸੋ ਫੋਗ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਉਹਦਾ ਛਿਲਕਾ ਵੀ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਿਚੈ ਅੱਗ ਜਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਮਿੱਠੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾ ਆਏ, ਲੋਕੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਅੱਜ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਨਾ ਆ ਜੋ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਬਸ ਕੜਾਏ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਖਿਨਮੇ ਕੋੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤੜੇ, ਮਾਇਆ ਭੋਗ ਮਿੱਠਾ ਕੁੜਤਨ ਚ ਬਦਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਹਾਂ ਮਨ ਵਿਖਿਆ ਸੋ ਲਪਟਾਹੀ, ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ, या जग में को रहन ना पावै, जिस दुनिया च तू रहना पे इत्थे किसे नहीं रहना, कोई पहला भी नहीं रहे। तो महाराज कहते ने एक आवह एक जाही, मैं अर्थ किते ने कई जमदे ने रोज ते कई रोज मरदे पे। तो मना जेड़े मरदे पे उन्होंने पुछ के देख कि वह वासना विच लुप्त नहीं सन। गुरु तेग बहादुर साहब कहने वो वासना विच प्रवृत्त नहीं सन। इत्थे नाशवानता समझा के कह रहा भी तू ना खच तो एक आवह एक जाही। ते सच्ची है जी, पता नहीं किन्ने को आ गए किन्ने को तुर गए। गुरु गोबिंद सिंह का बचन है, जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी, छतरी की छाया कई कोस लो चलत है। वो बंदे है जेड़े सच्ची जी, जिन्हां दे सिर ते छत्र झुलदे सन, किन्ने आए किन्ने चले गए। छत्र ही की छाया कई कोसलो चलत है, बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश, बड़े बड़े भूपन के द्राप को दलत हैं। इन्हें ताकत वाले आए गवांडियां दे राज खोले, बड़े बड़े राजे गुलाम बना ले, बड़े बड़े राजन के द्राप को दलत है। मान से महीप दलीप के से छत्रधारी, बड़ो अबमान पुंज दंड को करत हैं। दारा से दल्यूसर दुर्योधन से मानधारी, भोग भोग भूम अंत भूम में मिलता है। एक आवह शेख हयाती जग ना कोई थिर रहा। जिस कमरे च आपां बैठे हैं, जिथे आपां बैठे हैं, खिमा करियो पता नहीं साडे तो पहला इत्थे किन्ने को बह के तुर गया। सिर्फ एक बिल्डिंग की आपां गल कर रहे हैं, इस प्लैनेट ते पता नहीं किन्ने को आए। शेख हयाती जग ना कोई थिर रहा, जिस आसन हम बैठे केते बैस गया। बुल्ला कहता है एक बंदे ने ख्याल बनाया सी मैं सारी दुनिया जितनी है। मैं चलो किताब का जिक्र नहीं करता, है यो जी सानू पढ़नी पई भी, इस करके भी कथा करने। मैं इत्थों तक राजियां दे इतिहास पढ़े आ, एडे नकम्मे महाराज की बाणी का तां पाठ करांदे हुंदे सन मैं वासना की पूर्ति रज के कर सकां। देखो किन्ने बंदियां दे अंदर जिहड़े सन गरके जा चुके सन। जहर इहो जिहा है, मिठा बहुत लगता है, पर गुरु तेग बहादुर कहता बड़े चले गए सुभोगण वाले। बुल्ला कहता है सिकंदर ने कहा सी सारी दुनिया ते मेरा राज होवेगा, सिर्फ सिकंदर होवेगा। वो कहता अज मैं वेखना हिस्टरी वाल, कित्थे है सुल्तान सिकंदर, मौत न छड्डे पीर पैगंबर, इत्थे कर कर गए अडंबर, कर कर गए अडंबर। इत्थे कोई पाएदार नहीं, उठ जा कुराड़े मार नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे रहन न पावे सुर नर देवा, इक आवे इक जाही। रहन न पावे सुर नर देवा, ऊट सिधारे कर मुंजन सेवा। जीवत पेखे जिन्हें हर हर त्याया, साध संगति ने दर्शन पाया। किन्ने आए किन्ने तुर गए प्यारो, रोज किन्ने जा रहे। तो जो बंदा मरदा है ना, शरीर तो ही है,
हुण पुछिए तेरियां अखां किधर गईयां, तेरियां वाशना वालियां इंद्रियां कित्थे गईयां, कित्थे गया वो चेतना तेरी जिन्हें सारी जिंदगी इनू। भरथरी का एक वैराग शतक है, ग्रंथ वेदांत कह लवां, उहदा पाशटीका मिलता है। वो कहता लोगों इस भुलेखे नूं मन चों कढ़ दिओ, असी सोचने असी वासना नूं भोगने आ, ये भुलेखा है। असल च वासना सानू भोग जाती है। किवें जी? काम क्रोध काया को गाले, काम नूं गाल गया कि क्रोध नूं? काम क्रोध दा फुरना उत्थे खलोता है, पर गल तां ओ गया जिहड़ा भोगन तुरिया सी। काम क्रोध काया को गल है, ज्यों कंचन सुहागा ढल है। महाराज कहंदे आ या जग में कोऊ रहन ना पावे, किसे नहीं रहना, ना धर्मी ना कुकर्मी सब जाना। एक आवह एक जाही रहाओ। इसे करके गुरु तेग बहादुर कहंदे राम गयो रावण गयो कोऊ रहन ना पावे, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कहो नानक थिर कछ नहीं सुपने ज्यों संसार। महाराज कहते जिमी पुछे आसमान, फरीद साहब कि जमीन ते आसमान आपस च गल करते पे ने, ते आसमान कहता है मेरे तारे मेरे सियारे मेरे चंद्रमा मेरा सूरज अजे भी कौम, पर मैनू धरती तू दस तेरे ते एडे एडे वड्डे आए आकड़ वाले कित्थे चले गए। कहन लगी कबरां विच शरीर सड़दे पिया ते जिंद रब नूं भुल्लण करके फटकारां सहिंदी पई है। जिमी पुछे आसमान फरीदा खेवट किन गए, जालन गोरा नाल उलामे जी सहे। सच्चे पातशाह अगे फिर कहंदे आ ते जिदे च तू चंबड़िया है। सुनो, काको तन धन संपत कांकी। सुनियो, कांको दर्थ कल भी असीं पाठ कीता सी। किस दा तन, केड़ा धन, कित्थे संपत्ति दसो। कोई किसे दा तन किसे दा धन किसे दी संपत्ति। ते महाराज कहंदे कांस्यो निहो लगाई, जिन्हां नाल तू मुहब्बत करना वो केड़ा हो तेरे नाल जाण वाला। फिर बेनती है ये नहीं कला दूजन, ऐस तन नूं मैं मुहब्बत करना। गुरमुखो ये आया जरूर ये नाल जाना थोड़ा है। इसे करके गुरु अमरदास ने क्या वो शरीर तू ओनू चेते कर लै जान तो पहला जिन्हें तेरी रचना की सी। काको तन धन संपत काकी, किस दा तन किस दा धन किस दी संपत्ति, केड़ा तेरा इन्हां विचों। कास्यो ने हो लगाई, जिन्हां नाल तू अपना नेह लाई बैठा है। ते महाराज ये सारे मेरे नहीं, मेरा ताना दिसदा पिया है, मेरे को धन है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे ने, इस्त्री है। महाराज कहंदे नहीं, जो दिसै सो सगल विनाश है। जेड़ा दिसदा पिया वो जरूर खत्म होएगा। इत्थे याद रखियो जो दी इत्थे जो कुछ दृष्टमान है, दृष्टमान एक दिन खत्म होना ही होना है। महाराज तो इत्थों तक कहंदे सूरज एक दिन खत्म नहीं होना, ये चंद्रमा नहीं खत्म होना। जो दिसै सो सगल विनाश है, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। किवें? ज्यों बादर की छाई। मेरी बेनती इत्थे भुलेखे नाल किते बब्बे ना लगा कन्ना कन्ने ते बिंदी नहीं ला देनी, बांदर बन जूगा। वैगुरु जिस ते बनेगा ना। बादर, बादर मीन्स बदल, बादल। छाई दा अर्थ है छां। जो दिसै सो सगल विनाश है, ज्यों बादर की छाई। आ जिवें बदल इन्नी धुप पैंदी उत्ते बदल आ गया, बंदा खुश हुंदा, ठंड पै गई, बदल बदलों की छां कदी एक को रहिंदी है जिहड़ी तेरे सिर ते खलोती है, कईयां कोल हो के आई ते अगे तेरे तो जांदी पई। महाराज कहते जिस दा पिया बदल की छां की तरह। इस नूं महाराज ने एक थां कहा ए माई माया छल, तृण की अगन मेघ की छाया, गोबिंद भजन बिन हड़ का जाल। तृण की अगन, निक्के जे सुके कख कट्ठे करके अग ला के सेकी जाओ तो सर्दी निकल जाएगी। कखां दी अग बुझदियां देरी नहीं लगती। तृण की अगन मेघ की छाया, बदलों की छां, गोबिंद भजन बिन हड़ का जल। हड़ां दा पानी उतलियां खेतां विच भी आ जांदा है, पर वह हड़ दा पानी सदा रुकिया थोड़ा रहिंदा है। जिवें बदलों की छां सदा नहीं, कखां दी अग सदा नहीं, हड़ां दा पानी सदा नहीं भरिया रहिंदा। प्यारिओ सच्ची ये जे जो कोई दिसदा पिया ये कुछ वापरन वाला है।
मेरे नाल वापरे, तुहाडे हर एक नाल वापरना है, पर ये मन की करिए, एडा वैड़ा महसूस नहीं करता। मैं एक दिन कहा सी कि गुरु तेग बहादुर साहब जी का बचन सी, ये जो कथा करते आया तो सारे चेते वे, महाराज नूं पुछो भी इस दुनिया में हैरानी की गल की है, सब तो हैरानी की है। महाराज कहते सब तो वड्डी हैरानी की गल शमशान घाट च हुंदी है। एक घर का जी मर रहा, उन्होंने फूकते पे आ, तो जेडे फूकण आए वो गल्लां करदे, हुण छेती काम निबेड़िए, आपां काम ते जाना है, वो समझते असीं मरना ही कोई नहीं। साधो रचना राम बनाई, एक बिनस है, एक अस्थिर मन है, अचरज लखियो ना जाई। पर मैं फिर भी बेनती करांगा अपने मन नूं समझाउण लई, फरीद साहब वर्गा दरवेश महापुरख, उन्हें कहा मैं कबरां विचों लंघना, अम्मा ते अब्बू दोनों की कबर देखना, मेरी अम्मी भी कबर विच, मेरा अब्बा भी कबर विच, भावें छोटी उम्र सन इन्हां दे पिता जी अब्बा चलाना कर गया, फौत हो गई उन्हां दी। कहते बस कबर कोलों लंघदा होया मैं इक्को सवाल अपने मन ते करना, ओ मना जिदा तू दुध पीता, जिन्हें तेनू प्यार किया, जिन्हें तेनू भगती चलाया, जिस अब्बा करके तेरा जन्म होया, आ कबर च पैणिया वैड़िया, मना हुण ते भतीज के रब की इबादत कर। तुसीं सारे पढ़दे हो, फरीदा कित्थे टैंडे मापियां कित्थे चले गए होए, जिन्नी तू जणियो है तैं पास्यों ओ लद गए, तू अजे ना पतीणियो। इसे करके गुरु जी कहते आ कि इनू नैगेटिव नहीं ले जाना, क्योंकि ये मन समझदा ही तां है, तो ये भी रब मेहर करे। नहीं तो सच्ची गल जे आम तौर पर बंदे यूज टू हो जाते हैं मौत बारे भी। मैं एक बार इत्थे तुहानूं बेनती की सी, इंडिया च मैं जे कोई देखना, असी बिच्चे हाँ, जिहड़ा बंदा रोज़ अंतम अरदासां दा कीर्तन करदा ना, वो यूज टू हो जाता, उन्होंने पता है शब्द पढ़ना ही पढ़ना है, भी 3.5 मन देरी दिओ सज्जन सीसड़ियाँ, अब की बार बख्श बंदे को। तो दूजा शमशान घाट विच लकड़ां जोड़न वाला बंदा, ਉਹਦੇ सामने बच्चे की बॉडी आ जाए, जवान की आ जाए, बुढ़े की आ जाए, वो मैं तां क्या, मैं अमृतसर साडे एक बहुत गुरमुख प्यारी रूह सन, वो जो अकाल चलाना कर गए, तो मैं गया किसी परिवार के रिश्तेदार की दिल्ली तो आना सी, इंतजार हो रही सी, तो वो कहता वेखो जी तुसीं इन्नी देर लाते पे हो, एक मुंडा मरिया नौजवान, मैं ओदी विच खा चुन्नी टाइम दिता है। मेरे मन च आ वेख मना किन्ना यूज टू है, वह तो काम है ना। याद रखियो ज़्यादा गाउण वाले असी, मैं अपनी गल करांगा, दूजी गल लकड़ां जोड़न वाला, ते तीजा राजनीतिक बंदा जिहड़ा थां थां ते श्रद्धांजलियां दिंदा, असर उत्ते भी कोई नहीं हुंदा। वो भी कहंदा तुहाडे दुख भी शरीक होण आए हाँ, ये बड़ी खेत की गल है, एक तुक चेते कीती हुंदी, वो कई साल चली जाती, क्योंकि लोग मन यूज टू हो चुका है इस तरह। गुरु तेग बहादुर सुत्ते नूं जगा रहा है, अठांदा पिया वार वार। इन मैं कहना मैं 59 शब्द हुण आउण वाले ने, 57 श्लोक कीते ने। सच एवे मैनूं ज्ञानी मान सिंह चौर की गल मेरे कन्नां च गूंजदी है। वो कहंदा गुरु तेग बहादुर तेरी बाणी पढ़ना चिंद लगदा ना, तेरे च कदी चंचलता ही आई ते ना कदी तू खिड़खड़ा के हसिया सै। इन्ने गंभीर ने, इन्ने डूंघे ने। हजूर अज कह रहे ने कि प्यारिओ जो दिस है सो सगल बनासा है, ज्यों बादर की शाही। हुण सतगुरु फिर सानू समत दिओ, इत्थों तक तो तुसां दस दिता। उंज वैसे मैं अष्टावक्र वैगुरु टाइम है सिर्फ 2-4 मिनट तुहाडे लैणे ने, ज़्यादा नहीं। कल नूं चलो वीकेंड शुरू हो जाना। एक है कृष्ण जी की गीता। वेखो नफरत नहीं करनी चाहिए किसी भी धर्म ग्रंथ नूं हेट ना करे सिख, पर अपना इष्ट गुरु ग्रंथ साहिब है दा याद रखियो। एक गीता है अर्जुन उपदेश दिता, एक गीता है अष्टावक्र दी। जे उस गीता तो बाद किसी गीता नूं ध्यान नाल पढ़िया जांदा, अष्टावक्र की गीता। राजे जनक दे दरबार च गया सी। अष्टावक्र दा वक्र दा अर्थ हुंदा टेढ़ा, अष्टावक्र दा अर्थ हुंदा जिहड़ा चलदा है ते ओहदी बॉडी ते 8 टेढ़ा, कदी खब्बे गोडा खब्बे नूं, पैर सज्जे नूं, 8 थावां तो टेढ़ापन। ते उत्थे चर्चा चल रही सी। मैं सिर्फ ओदी एक गल कहना चाहना, पहले जिहड़े 2 सूत्र ने उस चीज़ दे। अष्टावक्र जांदा है,
ਇਹਨੇ ਹੱਥੇ ਸੋਟਾ ਪਕੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ 8 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟੇਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਸਨ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸਾਰੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਹੱਸੀ। ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੇ ਜਨਕ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਰਾਜਨ मैं सुनिया सी तू बहुत विद्वाना का कदरदान है, तेरे दरबार च ब्राह्मण नहीं, ये सभी चामी कारक हैं। चलो मैं लफ्ज, ये चामी कारक है, चमड़े का काम करने वाला। हुण ब्राह्मणों नूं लग गया, सत्ती कपड़ी अग लग गई। ये टेढ़ा मेढ़ा बंदा सानू कह रहा है कि ये चामी कारक हैं। जनक खामोश सी। ब्राह्मणा ने कहा, जनक तेरे दरबार च ब्राह्मण की बेइज्जती हुई, निरादर होया। जनक दे बोलन तो पहला अष्टावक्र बोलिया, कहता जब मैं सभा में प्रवेश किया आपने हंसी क्यों करी, क्यों हंसे? सारे चुप सन। कहने लगे इस करके हंसे, मेरी स्किन, मेरी चमड़ी, मेरा शरीर टेढ़ा है। भांडे दे टेढ़े होया कदी आकाश थोड़ा टेढ़ा हुंदा है। सुनियो, भांडा टेढ़ा है, आकाश नहीं टेढ़ा होना। तुसी मेरे चम नूं वेख के हसे, ते जे तुसी देखदे ते इस टेढ़े मेढ़े विच भी तां ब्राह्मी बैठा है ना। अगर ब्रह्म देखदे तुसी ब्राह्मण हुंदे, तुसी चम देख के हसे, तुसी चामी कार हो। जनक सिंघासन तो थल्ले उठ रहा। उन्हें पहला सवाल किया अष्टावक्र नूं, कहंदा मैनूं दसो मेरा अंदर किवें टिके, मन किवें टिके। पहला क्वेश्चन बड़ी औखी अष्टावक्र दी कीता, मन किवें टिके। अष्टावक्र ने एको गल कही, राजन जितने भी विषय हैं इनको विष जानकर त्याग दे। सिर्फ पहला सूत्र ये वे, सुनियो, ये गुरु ग्रंथ साहिब च विख्या जो बिक विसार। गुरु तेग बहादुर अद्धी तोक च सारी अष्टावक्र की गीता की व्याख्या कर गए। अष्टावक्र कहता है, राजन जिन्ने भी विषय ने, जिन्ने भी वकार ने, इन्हों इस तरह त्याग दे जिमें जहर त्याग देईदा। सत संतोख दया धर्म इस तरह धारण कर ले जिमें प्याले अमृत भर के पीदा। गल्लां ही दो कीतियां, जहर की तरह त्याग दे नूं, सदगुणां नूं ग्रहण कर ले। अगे बहुत विस्तार किया, आत्म गुणा का जिक्र किया। मैं सिर्फ बेनती करांगा, गुरु तेग बहादुर साहब ये नहीं सानू कह रहा, हुण अगे समझाते हैं कि काम करो तू तज अभिमान शरण संतन गहो। तज का लफ्जी अर्थ आप जानते हो, छड्ड दे, त्याग दे। की त्याग? अभिमान, हंकार नूं छड्ड दे। शरण संतन गहो, शरण का अर्थ आप समझने शरण जाना, ओट लैनी। संतन इत्थे बहुवचन है। गहो का लफ्जी अर्थ हुंदा पकड़ना। सतगुरु सारी गल करके कहते ने, तेरा हंकार तेरे च रुकावट है, अपने हंकार नूं छड्ड दे, इबादत करने वाले गुरमुखां दी शरण विच चला जा। मेरी फिर बेनती, किहड़े संत? हुण इत्थे जे कोई आ जाए हुंदा ते पहला दूजियां दी तवा लाना सी। एक गल याद रखियो, जेड़ा बंदा स्टेज तो, मैं पिछले दिन ही कहा, सारियां नूं निंदा, आ भी माड़ा, आ भी माड़ा, आ भी माड़ा, ਉਹਦੇ अंदर नूं पढ़ लो तुसीं, पढ़े लिखे, ਉਹਦਾ मतलब ये हुंदा भी मैं ही चंगा जे, बाकी सब माड़े ने। है करोड़ों विचों संत अज भी है, बंदगी वाले अज भी ने, पर आ जिहड़ा स्यापा साडे मन नूं पिया, खौमे मैं कथा वाला वां, मैं कीर्तनिया वां, मैं विद्वान हाँ, मैं इन्ना वड्डा। गुरु कहंदा जदों बंदगी करन वाले कोल जाना ते पहला अपनी खौमे दी पंड बाहर सट। कबीर साधु को मिलने जाइए साथ ना लीजिए कोई। ਇਹਦਾ मतलब थोड़ा भी संगत च किसी नाल ना लियो, साथ ना लीजिए कोई। आ जेड़े तेरे फुरने हंकार दे ने, माया दे ने, पदवी दे ने, सब कुछ छड्ड दे। ते मैं ये भी बेनती करा, गुरबाणी ने दोनों पक्ष रखे ने। उदों भी पखंडी सन, बंदगी वाले सन, अज भी बंदगी वाले हैं, ते गुरमुखो अज भी पखंडी बहु गिनती च ने। पर पखंडियां पिछे ला के ना कि भी बंदगी वाला कोई नहीं, बड़ा वाह पैंदा। ये कहो जी संत होवेगा जिहदा डेरा होवेगा,
संत होवेगा। अज साडे मुल्क विच याद रखियो पहुंचे होए दी निशानी ये वे भी इहदे कोल पैसा किन्ना है, इहदे पिछे लोग किन्ने आ। राजनीतिकां नूं ते यही चाहिदा एक ये बाबे पिछे किन्नियां कुछ वोटां होणगियां, जिन्ने बंदे घट उन्ना बाबा छोटा, जिन्ने बंदे यादे जिन्नियां गड्डियां वड्डियां बख्श दे उन्ना वड्डा बाबा नहीं। गुरु रामदास दी परिक्रमा च देखियो, हो सकता कोई पाटे कपड़ियां वाला भी ब्रह्म ज्ञानी बैठा होवे, इबादत वाला बैठा। गुरु साहब कहते अपनी कौमे नूं छड्ड दे, तू रब दे बंदगी करने वाले मन मेरे तिन की ओट ले, मन तन अपना तीन दिन जे, जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्ब थोक का दाता, तिसकी शरण सर्ब सुख पावे, ओदी शरण च चला जा। पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर्भ कीता, अंधले त्रिभवन सूझिया गुर भेट पुनीता, महिमा साधु संग की तज अभिमान शरण संतन गहो, महिमा साधु संग की सुन हो मेरे मीता, मैल खोई कोट अग हरे निर्मल भय चीता। हंकार छड़ दे, गुरु तेग बहादुर कहते छड़ दे कौमे नूं, फिर की कर, फिर की होवेगा जी, मैं ये बाजांगा। गुरु साहब वेखो किड्डे भरोसे नाल कहंदे आ, कहन लगे तज ममान शरण संतन गहो, मुक्त हो है छिन माही। एक खिन लगेगा तेरी वासना विशीण खत्म हो जाएगी। मैं फिर बेनती करा सच्ची जी, जिन्नी किसे को रब दी अंदरों मेहर वरदी है, ओना ओदे कोल बैठिया अंदर टिकेगा बंदगी करने वाला। महाराज कहते संत ना लेवा देवी कर, लेवा देवी का अर्थ बिजनेस नहीं, महाराज का बचन है, संतन स्यों मेरी लेवा देवी, संतन स्यों व्यवहारा, नाम दी लेवा देवी कर, लै लै चंगे गुण दे दे अपने औगण, सच ये बंदा खिंच। ये सेवापंथियों का एक ग्रंथ है जी, श्री रतनमाल, रतनमाल, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक घटना है, मैं बस एक कह के समाप्ति कर देने लगा कि एक थां तो एक डेरे तो एक स्थान तो एक साधु नूं, वो साधु कहने सारिਆਂ ਨੂੰ दूजे डेरे ਵਿੱਚ पहुंचाया ते नाल एक रुक्का दे दिता कागज़ ते लिख के, ते क्या भी ये फलाने थां ते उस साधु नूं जाके देना, रस्ते च तू खोलना नहीं। वो लैके चला गया, उन्हें खोलिया नहीं। जदों उन्होंने जाके दिता रुक्का, रुक्का पहला कहते सन कागज़ का टुकड़ा, ते ओदे ते लिखिया सी भी जेड़ा बंदा ये सनेहा लैके आया ना, ये बंदा बड़ा चंगा, पर 3 औगण आ भैड़े ने जेड़े खैड़ा नहीं छड़ देते। याद रखियो औगण नहीं सन लिखे भी वो क्लीयर नहीं किया किहड़े, पर यह लिखिया 3 औगण ने ये ते तुहाडे कोल भेज रहे हैं, ते इहनूं तुसीं समत दिओ। जिन्हें रुक्का पढ़िया ना, उन्हें रुक्का लियाउण वाला जिहड़ा 3 औगणां वाला सी, उहदे चरण फड़ लै, कहन लगा गुरमुखा मेरा अंदर तक करोड़ा औगणां नाल भरिया, तेरा तो 3 औगणां नाल भरिया, छाल मार के छड्ड दे इहनूं। बस इन्नी गल कही, सच्ची मुच्ची बंदे दा अंदर तब्दील हो गया। मैं फिर बेनती करांगा, बख्शिश का कोई सिलेबस नहीं इत्थे, कोई पता नहीं किस कड़ी किरपा। हजूर कह रहे हैं कि भाई एक छिन च जुड़ जाएगा। अगली गल फिर सुचेत करता, जन नानक भगवंत भजन बिन। धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहते दास नानक भगवंत दर ते परमेश्वर, भजन दर ते सिमरन, ओदे सिमरन तो बिना सुख सुपने भी नहीं। सुपने विच भी ना सोची मैनू कदी सुख मिल जाएगा। सिर्फ जे सुख मिलना है तो ओदा सिमरन करके मिलना है, इबादत करके मिलना है। इसे करके गुरु ने कहा डिठा सब संसार सुख ना नाम बिन। महाराज कहते सिर्फ नाम एक सुख है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਕਹਾਂ ਨਰ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਮ ਗਵਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ।